minima, which is in theta is equal to L lambda, A being the slit width, theta is the angle of diffraction for particular minima called secondary minima, and also lambda is the wavelength, n is the particular number. For first minima, it will be 1 in sequence. Now we can see in between we have the maxima. The first minima यहाँ पे, can you see it? Is first minima, and first maxima is first secondary maxima is at slightly higher angle. In between this, in between two minima, there is the maxima, and its intensity is also down. तो इसकी कंडीशंस क्या है? मैक्सिमा की कंडीशन निकालते हैं, है ना? सेंट्रल मैक्सिमा की तो पार्ट डिफरेंस 0 था सभी के लिए. ना इसके लिए देखते क्या है मैक्सिमा के लिए. इनफैक्ट मैक्सिमा में फर्स्ट मैक्सिमा के लिए स्लिट विड्थ विल बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स, A/3 ईच. फर्स्ट की इंटेंसिटी एंड सेकंड की इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगी. Mutually they will be out of phase. Intensity of third remains. So it will be A sin theta will be, in fact, it will be x will be A/3 sin theta will be, in fact, A/3 x upon A/3 है ना. जैसे इसका किया था देखो. Let's see now here. It means slit width is divided in 3 equal parts. First maxima के लिए sin theta will be x upon A/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. यहाँ पे लिखते हैं इसको. x upon A/3 from figure, है ना. This gives us ये relation, and this is x, which should be equal to λ/2. First का second cancel कर रहा है. We are not talking about the bright intensity. We are talking first का second ने cancel कर दिया, तो third की intensity बची है. That we are discussing. So we are again discussing the cancelling effect of first by 1, and automatically third की remaining है. Are you getting this point? तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर लिख दूं. From figure, sin theta will be A/3 divided x upon A/3. A/3 will be hypotenuse. X upon, यहाँ से हमें ये मिल गया फर्स्ट कंडीशन. तो फर्स्ट की सेकंड ने कैंसिल कर दी. λ/2 की वजह से कैंसिल होगा. आउट ऑफ फेस 180 डिग्री, तो ये बचेगा 3/2 लैम्डा आएगा. 1.5 लैम्डा. फर्स्ट मिनिमा क्या आया था? 1 लैम्डा था. ये 1.5 लैम्डा, 0.5 अहेड ऑफ दैट. ठीक है. ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा. देखो दिस पर, उसके लिए फर्दर हायर एंगल जाना पड़ेगा. उसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा स्लिट. A/5 फर्स्ट की सेकंड कैंसिल लगेगा, थर्ड की फोर्थ, एंड फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट की बचेगी. तो यहाँ से देखो
यहाँ से a/5 आ जाएगा, a/5 बिकॉज हाइपोटेनस a/5 होगा, a/5 sin थीटा शुड बी अगेन λ/2. यहाँ से a sin थीटा इज 5/2 लैम्डा, इसको 2.5 लैम्डा ले सकते हैं. So it is again 0.5 ahead. Second minima was at 2 lambda, it is at 2.5 lambda, है ना. तो यहाँ से जनरलाइज कर देते हैं. अभी यहाँ पे देखो 3/2 है, यहाँ पे 5/2 है ना. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस हाफ. ये आधा आगे चल रहा है उससे, मैक्सिमा से, मिनिमा से n है, उससे हाफ अहेड चल रहा है. हाफ n प्लस हाफ इंटू लैम्डा. या फिर इसको एलसीएम लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n+1 और 2 को नीचे का 2 जो है बाहर निकाल दिया. जनरली वी यूज दिस वन. ठीक है, दिस इज फॉर मैक्सिमा. गेटिंग. तो ये जो है again it is in sequence. For first maxima, first secondary maxima, n will be 1. For second के लिए 2. Both are starting from 1, minima and maxima, and 1 being for the first maxima or minima. यहाँ पे 1 maxima की बात हो रही, तो n will be 1 for first maxima, second के लिए 2, 3 के लिए, third के लिए 3, and so on. So you have to remember this. Maxima condition, you can write it like this, you can write it like this, both are same. Got it? Now there is information for you. We will have the vacation. अभी अपने क्लास नहीं होंगे till 10th of March because of your pre-boards preparation. We are giving you leave. ठीक है? And 11th March से we'll have only JE class in afternoon 2:15. Clear to all? Yes, अभी sir. आप लोग प्री बोर्ड की तैयारी कर लीजिए अप टू 10th. उसके बाद 11th से JE क्लास एंड अपने बोर्ड के लिए देयर विल बी द टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट फ्रॉम 20th March onwards. We'll have the subjective test for board, and 1st April onwards objective test for JE. So that intimation will come, but फिलहाल अपनी vacations रहेगी, preparation for pre boards and all. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो थोड़े से मैं आपको डेमो दिखा दूंगा सभी चैप्टर के प्रैक्टिकल्स के, सो दैट यू कैन रिवाइज द थिंग्स. इसका ये जो है इस चैप्टर में ओके, इस चैप्टर में विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ तक ही है बस. विल कंप्लीट दिस, देन विल सी द डेमोज ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द अदर चैप्टर्स. देखते हैं. तो इंटेंसिव वेरिएशन इसमें कैसा आएगा, वी कैन सी हियर लाइक दिस. यहाँ पे इंटेंसिव मैक्सिमम है, देन डिक्रीजेस एंड सो ऑन. इस तरह से यहाँ पे डार्क है, यू कैन सी. यहाँ पे ये ब्राइट है मैक्सिमम, फिर डार्क है, लाइक दिस. तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल उसमें दिखा सकते हैं. यू कैन शो इट लाइक दिस. डार्क कहाँ पर होगा, ओके, साइन थीटा. यहाँ पे साइन थीटा दिया है, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डार्क के लिए. तो n इज 1, यहाँ पे फर्स्ट डार्क के लिए 1 हो जाएगा. तो साइन थीटा विल बी लैम्डा बाई ए. दैट्स व्हाट इज शोन हियर. 2 लैम्डा बाई ए पर सेकंड डार्क, 3 लैम्डा बाई ए पर थर्ड डार्क. यहाँ पे डार्क का दिखाया हुआ है इसमें. और ये मैक्सिमम है. मिनिमा की इंटेंसिटी कम होती चली, मिनिमा तो ऑलमोस्ट 0 है, एंड सेकंड मैक्सिमा की कम हो गई, थर्ड की और कम, फोर्थ की और कम लगी. So this is your intensity variation. Intensity on y-axis, sin theta on the x-axis. And
width of the central maxima निकालने के लिए it is the distance between minimas, first minimas on either side of center of the screen. इससे दोनों तरफ जो है फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? sin theta इक्वल टू 1 लैम्डा. तो फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा, एंड यहाँ से देखो tan थीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल में y बाई डी हो जाएगा. थीटा सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, सेंटर ऑफ द स्लिट से मेजर करते हैं, तो y बाई डी, एंड यहाँ पे हमने sin थीटा की वैल्यू y बाई डी पुट कर दी इसमें. तो y कितना मिला? y the linear distance for the first minima from the center of the screen. ठीक है, तो इसको डबल करना पड़ेगा. इधर y मिल गया, इधर भी y है, डबल करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो width will be twice of y, which will be 2 lambda d by a, and ठीक है, तो ये depends upon these three terms. If slit width goes up, width of the central maxima plus others also comes down. Others की lambda by 2 होगी. Other fringes जो होंगी, other fringes will be lambda d by a होगी, half of this होगी. Other fringes are of half of this. यहाँ पे हमने वो लिखा भी है. ठीक है, यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विथ में d से डिवाइड करते, d से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा. तो 2 lambda by a बचेगा in radian, and fringe width of the other fringes is half of this. Half of this width. तो ये वन ऑफ द डिफरेंसेस है. अगर आपको 4 डिफरेंसेस लिखने पड़े तो आप एक ये लिख सकते हैं, इंटेंसिटी का लिख सकते हैं, एंड अदर हाउ दे आर प्रोड्यूस वो लिख सकते हैं. नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम होती है वो लिख सकते हैं. ये डिफरेंसेस देखो, 2 स्लिट से ऑब्टेन होता है, ये सिंगल स्लिट से. फ्रिंज विड्थ आर इक्वल, ये अनइक्वल है. इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट फ्रिंजेस सेम, यहाँ पे डिक्रीजिंग होती जाती है. एट एंगल लैम्डा बाई डी पर वी गेट द मैक्सिमा, यहाँ पे एंगल लैम्डा बाई ए पर मिनिमम मिलता है. मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस. ओके, अगर स्लिट विथ कंपेरेबल टू वेवलेंथ है तो दोनों इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं, इंटरफेरेंस भी एंड डिफ्रैक्शन भी. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन फ्रिंज के अंदर, सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर आपको छोटी छोटी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी ऐसे. जैसे ये क्वेश्चन भी है, एक शॉर्ट एग्जांपल है. एग्जांपल 10.3 में what should be the width of each slit? What would be the width of each slit B to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima? है ना, अगर आप कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अंदर ही उसके इंटरफेरेंस पैटर्न, इंडिविजुअल स्लिट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रूव कर रही है, बना रही है, और उसके अंदर इंटरफेरेंस दो डबल स्लिट में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन भी मिल रहा है, इंटरफेरेंस भी है. ऐसा कुछ होगा, इक्वल विड्थ की इंटरफेरेंस फ्रिंजेस भी बनी.
सेंट्रल ब्राइट के अंदर, सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर 10 फ्रिंजेस ऑफ इंटरफेरेंस आर फॉर्म। तो इक्वेट कर देंगे यहाँ से 2 लैम्डा डी बाई ए और 10 फ्रिंजेस ऑफ इंटरफेरेंस लैम्डा डी बाई डी। तो इसमें आपको दिए हुए वैल्यूज यहाँ पर ये सामने ही है। तो ये आपको दिए हुए वैल्यूज, डी कितना दिया, 1 mm है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू डी की 1 mm, और बाकी तो टर्म्स कैंसिल हो रहे, लैम्डा इनटू कैपिटल डी। तो स्लिट विड्थ इज कमिंग टू बी 0.2। तो स्लिट विड्थ के पर डिपेंड करता है कि इन डिफ्रैक्शन के अंदर, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर इंटरफेरेंस में भी डिफ्रैक्शन हो रहा है। ऐसा इंटरफेरेंस तो हो रहा है, 2 स्लिट्स तो आई, पर उसके अंदर आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न भी दिख रहा है। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं बोर्ड में। फ्रिंज स्पेसिंग किसको बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ को। फ्रिंज स्पेसिंग इज ऑल्सो, fringe width is also called fringe spacing. ठीक है। Now we'll see the experiment of photoelectric effect. Photoelectric effect का एक्सपेरिमेंट कैसे है? तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे पहले। याद है इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप याद है आप लोगों को? एक मिनट, फ्रिंज स्पेसिंग लिख दो। Are you there? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्कोप में हम चार्ज करते हैं उसको, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्कोप की लीफ को चार्ज कर देंगे, है ना, by producing the shortage of, by providing the surplus electrons। फिर अगर हम उसको लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर उसके उसके 1 इलेक्ट्रोस्कोप के टॉप में अगर हम एक्सपोज करेंगे उसको, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर से वो अनचार्ज हो जाएगा। तो वो दैट्स हाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क्स। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होनी चाहिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, आई मीन रेडिएशन होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन, मतलब इट प्रूव्स द फोटोन नेचर, मींस इट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। क्योंकि लाइट की ड्यूअल नेचर है, it is interacting, it produces the wave nature also, it is wave toy, but also interacting, also it is photon nature. That's how the photoelectric effect was explained by Einstein. All right. फिर हम अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का देखते हैं, एक्सपेरिमेंट, एंड आल्सो लाइन स्पेक्ट्रा एंड हाइड्रोजन गैस, अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, एंड देन it will be, and when it comes back to ground state, electrons go to the higher energy level, coming back to the ground state will provide the Barnett series will provide the visible radiation in visible range। Barnett series में तो हमें different colors के spectrum दिखते हैं, that we are going to see, है ना। and also semiconductor, अगर सपोज हमने सिलिकॉन की शीट ले ली और उसको हीट किया, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? बोलिए। इफ यू टेक द सिलिकॉन शीट एंड हीट इट, इट्स कंडक्टिविटी गो अप और गो डाउन? कंडक्टिविटी इंक्रीज। सेमीकंडक्टर क्या होता है, नॉर्मली वो इंसुलेटर रहता है, जब हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर बैंड से अपर बैंड में जंप करते हैं, तो इट बिकम्स कंडक्टर। तो we'll see on how heating the conductivity goes up and it starts conducting the current. So these experiment we are going to see one by one. ठीक है, all three, then you can revise the things on your own. Just let me show you.